कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया ऑडिटिव नॉइज को, इंटरफेरेंस को, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, एटेन्यूएशन, then we have to move to frequency of this. So on the basis of frequency, the transmission impairments broadly classified into multiplicative noise and distortion. It's actually the effect. किस पे ज़्यादा effect है उसके हिसाब से. So what is multiplicative noise? The noise that does not only add to the system but also multiplies with the signal जिसके साथ noise interface कर रही है. तो अगर हम सिंपली एडिटिव नॉइज ले रहे थे, so it was simply adding and subtracting to the signal, to our message signal, but multiplicative noise will change the frequency also. ठीक है, इसका सिंपल उदाहरण जो है क्यों कैसे, वो आपका मॉड्यूलेशन ही जवाब देगा. जब आपने बेसिक कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन पढ़ा होगा, what you are actually doing, you are multiplicating two signals, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा फर्क. और फिर आप किस में फर्क देख रहे हैं? फ्रीक्वेंसी. The frequency gets shifted. That's a big problem. So same is done with the multiplicative noise. That means what will happen? The frequency will get shifted. When frequency gets shifted, that means channel gets shifted. ठीक है ना? There will be new components in the signal. और वो components नए आ जाएंगे. They are the noise components that will be added. और चूंकि मल्टीप्लिकेशन है, so एम्पलीट्यूड का तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, because you know that addition is simple addition but multiplication is the repeated addition. So if you add with 2, your signal will simply have a shift of 2, है ना. But if you multiply by 2, the every point जो आपके सिग्नल में, that will be multiplied by 2, that will be double. ठीक है. So that is a great fault. So multiplicative noise जो ज़्यादा असर करता है, और most of the multiplicative noise come from interference. ठीक है. It is not inherent. Inherent आपके पास एक ही noise थी, that was AWG and additive vibration. Then we have distortion. What do you mean by distortion? Distortion is a type of transmission impairment in which some of the frequency components of the signal are either added or deleted from its spectrum. So simply, if you have a complex signal or a composite signal, so if your signal is complex or composite, क्या फर्क है इनमें? कुछ नहीं. आप इस्तेमाल में देखेंगे तो कोई फर्क नहीं है. Complex signal is a signal that is made up of many simple signals, है ना, and composite signal is also the same. So complex और composite signal जो भी आपके पास होगी, जिसकी एग्जांपल में आपको इससे पहले भी बताया गया, suppose your simple rectangular wave or square wave or pulse wave, and then your non-sinusoidal repeating signals like triangular wave, like sawtooth wave, step sequence. ठीक है. ये सारी सिग्नल जो है या कॉम्प्लेक्स हैं, कंपोज, दे आर मेड ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, और हर एक में जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, दे आर वेल डिफाइंड. दे आर नॉट प्रोबेबिलिस्टिक और रैंडम, है ना. बिकॉज जब भी आप कोई सिग्नल लेते हैं, यू टेक दिस सिग्नल एंड डू इट्स फोरियर सीरीज और डू इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, so you get a mathematical equation that is there. वो मत प्रोबेबिलिस्टिक होता है. So you have a number of frequency components that are there. जैसे पहला frequency component होगा आपका A नॉट, दूसरा होगा for example ओमेगा नॉट, ठीक है ना, A by 2. फिर उसके बाद होगा let us suppose 3 ओमेगा नॉट A by 3. फिर होगा A by 5 ओमेगा नॉट, etc. Well defined. The DC component is the fundamental frequency is the first harmonic, the second harmonic, and third harmonic, whatever.
ठीक है, दिस ऑर्बिटल डिफाइंड। और यही सारे कंपोनेंट्स जो है असली में हम रियलिटी में बोलते, जब यही सब कंपोनेंट्स हम मिलाए थे, जब ये सारी सिंपल सिग्नल्स हम मिलाए थे, तब जाके हमारी ये सिग्नल बनी थी, है कि नहीं? नाउ इफ यू ऐड सम अदर सिग्नल, सम अदर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हियर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाऊंगा a/2, मैंने साइन भूल गया, यहाँ पे साइन साइन साइन, सो इट इज लेट अस सपोज a/4 साइन ऑफ 3 ओमेगा, ऐसे कुछ कंपोनेंट आ गया एंड इट विल गेट एडेड टू इट, और इसी में से एक कंपोनेंट जो है वो डिलीट हो गया, व्हाट विल हैपन टू दिस सिग्नल? डिस्टॉर्ट, इसलिए इसको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। डिस्टॉर्ट हो गया, शक्ल खराब होना चाहिए ना, दिस फेस हैज बीन डिस्टॉर्टेड, इसकी शक्ल खराब नहीं। एटेन्यूएशन में शक्ल खराब नहीं होती है मत, उसमें सिंपली क्या कहते हैं, पावर कम होता है, सिग्नल की जो सूरत होती है ना, शक्ल होती है, वो बराबर सेम रहती है, इट इज आइदर बिग और स्मॉल, बट इन डिस्टॉर्शन you change the shuttle, change the shape of the signal, and your maximally your shapes like in your frequency components. So when you add or delete a frequency component, अब मसला है कैसे ऐड होगा? Obviously using noise and interference. So noise की वजह से, जैसे मैंने अभी बोला, if you get a multiplicative noise and noise that is a multiplicative effect, ठीक है, so new frequencies will be formed and they will be simply added to the signal. When a multiplicative noise adds a frequency to the signal, it gets distorted. Same way, interference. So if a channel is co-interfered or inter-channel interfered, ठीक है, तो उससे क्या होगा? तो वो जो इंटरफेयर कर रही है सिग्नल, वो इम्बाइब होगी हमारे सिग्नल में, सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज सिंपली एडेड एंड दैट विल डिस्टॉर्ट द सिग्नल, सो दैट्स कॉल्ड डिस्टॉर्शन। ठीक है, डिस्टॉर्शन में आपने इससे पहले कुछ पढ़ा है, पावर सिस्टम में होता है डिस्टॉर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड THD, है ना? वो क्या होता है? वो होता है कि आपकी जो वेव नॉर्मल है वो 50 हर्ट्ज की है, चल रही है सीधे, ठीक है, देन यू गेट द हार्मोनिक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, जितने भी उसके चीजें हैं, डिफेक्ट्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है, नॉइज एंड अदर थिंग्स, तो उसके बाद क्या होता है, तो वो सारे कंपोनेंट्स जमा होकर बनाते हैं, वो नॉइज बनते हैं, ठीक है, सो अब उनकी वजह से टोटल कितना नॉइज बन गया जो इंटरफेयर कर रहे हैं हमारी नॉर्मल सिग्नल को, दैट इज नोन एज टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, दैट डिस्टॉर्ट्स द सिग्नल। अगर नॉर्मल साइन वेव जो 50 हर्ट्ज की है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, सो वो नॉर्मली पावर सिस्टम में भी पढ़ते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन सिस्टम में तो डिस्टॉर्शन है ही। सो अब दूसरा, ये तो हो गया, ऐड हो गया कंपोनेंट, हाउ विल वी गेट द कंपोनेंट, how will we lose the component, how can we get a component out? Filter. Sure, very good. So if your medium has filter characteristics related to that particular frequency, for example अगर आपका जो ये है medium है, it's acting as a notch filter for a particular frequency, ठीक है, it will simply get that frequency out. Notch filters पढ़े हैं ना? आपने कहा था हाँ? particular frequency पे। हाँ, एक हो गया नॉच फिल्टर ऐसा, दूसरा हो गया ऐसा, ये वाला नॉच फिल्टर हो गया जो सब फ्रीक्वेंसीज को छोड़ता है, एक को फिल्टर करता है, दूसरा हो गया जो फर्स्ट सब फ्रीक्वेंसीज को नहीं छोड़ता, बस एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ता है, ठीक है, सो ये दो नॉच फिल्टर्स। और मैक्सिमली नॉच फिल्टर हम इसको बोलते हैं, बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ फिल्टर इट मस्ट फिल्टर इट आउट, ठीक है, सो इट इज की जो एक फ्रीक्वेंसी को, बस एक फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करता है, बाकी सबको छोड़ता है। सो इफ योर सिग्नल, इफ योर मीडियम सॉरी हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉच कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सो दैट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल बी टेकन आउट, ठीक है, और इफ थ्रू नॉइज और इंटरफेरेंस a particular frequency gets added, that will interfere destructively with the component in our signal.
समझ रहे भाई, अंग्रेजी कसम से आप हेल समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो आप नॉइज हो रही है अभी, तो किससे हो गया? मीडियम की वजह से, ठीक है। सो एक तो मीडियम की वजह से, इफ मीडियम इज बीइंग यूज्ड and that is acting as a notch filter for a particular frequency, and that frequency is one of the components of a composite signal, that composite signal will get distorted. दूसरा तरीका ये है, if there is interference और उस इंटरफेरेंस में आपकी एक सिग्नल ऐड हो गई, ठीक है, मगर that is interfering destructively with any component जो इसमें प्रेजेंट है, तो करना फिर इसके आंसर खत्म मसला, तो अपना भी खत्म हो गया। अच्छा, मतलब अगर ऐड भी हो रहा होगा लेकिन उसके साथ डिस्ट्रक्टिव प्लस एक्स माइनस उसमें भी हो जाएगा ना फिर डिस्ट्रक्टिव। अगर आपके पास प्लस एक्स सिग्नल यहाँ से जाए, प्लस एक्स ऑफ टी जा रही है, तो जो ओके, अब वहां से आ गई माइनस एक्स ऑफ टी सिग्नल, वो ऐड करके क्या आ जाएगा? जीरो। तो हमारी प्लस एक्स ऑफ टी भी गई ना, दैट्स इट। ठीक है, ये जो मैंने ये बोल रहा हूँ, ये वाला ये जो डिस्टॉर्शन क्रिएट करना है बाय गेटिंग सिग्नल इन दैट विल डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर विद सम ऑफ द थिंग, ठीक है, और उसके बाद उसको एलिमिनेट करेगा। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आजकल मोबाइल टेलीफोनी में। मोबाइल टेलीफोनी में हम इस्तेमाल करें जो हमारे फ़ोन्स होते हैं ना, या जो आपके पास ये होते हैं कनमिशी, क्या मतलब ईयरफोन या वो एयरपॉड्स, बहुत सारी चीज़ें, या वो लेवल है ना, उन पे लिखा हुआ होता है उसके डब्बे पे, इट हैज़ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। देखा है भाई? देखा नहीं आपने? महसूस किया होगा जो आजकल के फोन है, जब पहले करते थे ना पहले, जब वो वाशक फोन होता था, फिर हम पिकनिक बस में होते थे, ठीक है, जब दूसरे साइड से जो उठाते थे ना घर वाले फोन, उनको बहुत बैकग्राउंड का शोर दिखता था, तो उनको बिल्कुल हमारी बात समझ नहीं आती, ठीक है, हमें तो आती क्या वहाँ से, और हमें भी यहाँ पे कोई नॉर्मल शोर है तो नहीं आता था। अब क्या होता है, आप अभी करोगे ना, सो दे विल गेट योर, अगर कितना भी बैकग्राउंड शोर होगा ना, तो उसका क्लियर। How? By active noise cancellation. Active noise cancellation में क्या होता है? Your mobile phone has 2 or 3 microphones. एक माइक्रोफोन होता है जहाँ पे आप बात करते हैं नीचे, ठीक है, और दूसरा होता है पीछे इसके स्क्रीन पे, मतलब जहाँ वो मैक्सिमली किसको पकड़ सकता है? बैकग्राउंड वाले शोर। उसके बाद आवाज़ जो आगे जा रही है, ठीक है, यानी कि जो आगे हमें भेजनी होती है, उसमें से हम माइनस क्या करते हैं? जो उस पीछे वाले माइक्रोफोन ने पकड़ा, ठीक है, तो वहां के निकलेगी आउटपुट हमारी सिग्नल, और वो सिग्नल बैकग्राउंड को नॉइज कैंसिल करके आगे वाले सिग्नल भेज देता है, दैट्स कॉल्ड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, ठीक है। सो इट इज यूज्ड एज ए ब्लेसिंग। वरना नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली है ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट, जिसकी वजह से हमें डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, अब डिस्टॉर्शन की भी 2 तरीके हैं, एक हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, दूसरा हो गया फेज डिस्टॉर्शन, ठीक है। सो क्या मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन और फेज डिस्टॉर्शन में? फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन हो गया जब आपका कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट गायब हो जाएगा या ऐड हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बोला। फेज डिस्टॉर्शन होता है कि आपके पास सारे कंपोनेंट्स बराबर है, ठीक है, लेकिन कोई कंपोनेंट है उसमें फेज में चेंज आ गई। So means if this is a naught, this is a1 a by 2 sin of omega naught, this is a by 3 sin of 3 omega naught. Let us suppose इसको हो गया a by 3 sin of 3 omega naught plus omega t, where omega t is the change of phase in this particular component. Okay, that will also create big problems because it's the phase of the signal that will say when you add the simple components what will be the shape of your signal. अगर आपके फेज में थोड़ा उधर इधर हो गया, then again you will have distortion and that will be called as phase distortion. So you can have frequency distortion as well as phase distortion. Okay, then we have on the basis of phase different जो हमारे पास ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स है। इसमें एक है मल्टीपाथ, ठीक है, मल्टीपाथ द थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन योर सिग्नल्स कोर्स, अगर आपको याद होगा, ठीक है, आगे यार। तो क्या बोला था हमने? जब आपका आजकल के दुनिया में जब आपका ट्रांसमीटर, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कल की क्लास में, कि जो हम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं दैट
are comparable, whose size is comparable to the wavelength of the signal that you are transmitting. तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपके पास वेवलेंथ्स कंपेरेबल होते हैं ना टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, वही वाले ऑब्जेक्ट्स आपके सिग्नल के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं। क्या छेड़छाड़ हो सकती है? रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, ठीक है, बेंडिंग एंड अदर थिंग्स। सो बेंडिंग एट द एज, रिफ्लेक्टिंग बैक, डिस्पर्सिंग द सिग्नल, समझे? ये सारी चीज़ें कौन करती है? वही चीज़ें करते हैं, वही ऑब्जेक्ट्स करते हैं जिनका साइज कंपेरेबल होता है वेवलेंथ के। किसकी वेवलेंथ की? जो हम सिग्नल भेजते हैं, ठीक। अब क्योंकि जो हम सेलुलर कम्युनिकेशन में या जो भी कम्युनिकेशन आजकल है, ठीक है, तो उसमें हम जो सिग्नल्स भेजते हैं दे आर कंपेरेबल टू एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लाइक लैंप पोस्ट, ठीक है, तार, इसके बाद ब्रांच ऑफ ट्री जैसे मैंने बोला, और जो आपके पास छोटी छोटी बिल्डिंग्स है और बाकी चीजें हैं, सो दे एक्ट एज रिफ्लेक्टर्स, डाइवर्टर्स, डिस्पर्सर्स, ठीक है। तो जो सिग्नल मैंने यहाँ पे भेजी, यहाँ से जो मुझे रिसीवर तक भेजनी है, तो वो क्या करती है काम? वो सीधे लाइन ऑफ साइट में उसके पास नहीं पहुँचती है, वो एक लाइन होगी जो सीधे पहुंचेगी, बाकी डिस्पर्स होके, बैंड होके, उसके बाद बाकी सब चीजें होके लास्ट में पहुंच जाती है रिसीवर के पास। अब रिसीवर के पास जो सिग्नल लास्ट में एनर्जी मिलती है वो बिल्कुल एक ही टाइम, सिर्फ टाइम की पावर वाली नहीं होती है, इट गेट्स इट, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स इन टाइम, या डिलेड भी नहीं बोल सकते, वी कैन से इट इलोंगेटेड इन टाइम, समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हम सीधे बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इको है, सुनेगा थोड़ा इको, मगर ये इको इतना फास्ट है कि अशुभासन हमें इतना इको परेशान नहीं कर रहा। नाउ व्हाट वी विल डू, आई विल सिंपली डबल और ट्रिपल द साइज ऑफ दिस रूम, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा काम, उसके बाद फिर से बात करूँगा। आप एक बात मेरी यहाँ से सुनेंगे, वो तो सुनी, आप फिर देखेंगे कुछ माइक्रो सेकंड्स के बाद मेरी आवाज़ वहाँ से टक्कर खा के आ जाएगी, ठीक है। लेट अस सपोज यहाँ इसके ऊपर लाभ से सच करा रिफ्लेक्ट, ठीक है, फिर थोड़ा कुछ और माइक्रो सेकंड के बाद वहाँ वाली सिग्नल टक्कर खा के आ गई, तो आपके कानों पे मेरी सिग्नल की कितनी कॉपीज पहुँचती है? बहुत सारी। दैट्स द प्रॉब्लम। हमें तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, इंटेलिजेंट लोग, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास मोबाइल फोन है, जो हमारे पास ट्रांसमीटर्स रिसीवर्स हैं, उनके लिए वो बड़ी प्रॉब्लम है, एंड दैट्स कॉल्ड मल्टीपाथ। और उस मल्टीपाथ से phase difference आएगी obviously signal को, because you get when you get the same signal at different times, तो कौन सी चीज होगी, ठीक है। सो उसकी वजह से कौन सा डिस्टॉर्शन होगा? फिर से फेज डिस्टॉर्शन, ठीक है। और ये चीज दूसरी, दैट इज कॉल्ड द डिले डिस्टॉर्शन। ये हमने उस दिन पढ़ा था, यूनिवर्सल सिग्नल्स कोर्स इकट्ठे पढ़ाते हैं हम लोगों को। सो वी हैड यूज्ड अ मॉडल, याद आ गया कि जो हमारे पास मल्टीपाथ सिग्नल है, जब वो रिसीवर पे पहुंचती है उसकी शक्ल क्या होती है ना, उसमें होता है सिग्मा एक्स आई टी आई। तो एक सिग्नल आएगी विद टाइम t1 डिले, सेकंड सिग्नल विद टाइम 2, तो उसका पूरा ऐड करके पूरा। सो देन व्हाट वाज द, उसका फिर क्या था? याद करो, उसको हम फिर किससे ठीक करते थे? व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिस्टम दैट यूज्ड टू गेट इट राइट? वेरी गुड। नहीं, LTI तो हुआ रहा। यू सच बोल रहा था मल्टीपाथ, मल्टीपाथ से प्रॉब्लम जिसकी वजह से हमें होती है डिले डिस्टॉर्शन एंड फेज डिस्टॉर्शन, एंड इन ऑर्डर टू गेट इट राइट व्हाट डू वी डू? वी वर यूजिंग समथिंग, नहीं वो सिस्टम था, दैट इज नॉट अ सिग्नल, उसी का उल्टा सिस्टम, इनवर्स सिस्टम हमने पढ़ा था उस वक्त। अगर वो सिस्टम, उसका इनवर्स सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं सो दैट वी गेट द सिग्नल बैक in a good shape. शाबाश, इतना जल्दी बोल गए, ये दो ही साल मुझे भी ना भूल गए हो? उनको हम बोलते थे डिले इक्वलाइजर्स। डिले इक्वलाइजर, इक्वलाइजर
So we're using the equalizer. Delay equalizer is the thing, the system that will be used. जो उसका inverse system होता था, that will get your signal back. So इससे multipath से कौन सी चीजें होती है? सब चीजें इसी से होती है. Delay distortion भी होगा. अब मतलब delay distortion क्या हो गया? Multipath से related. That means delay की वजह से distortion हो गया. Means जब आपके पास सब चीजों को add करोगे, जो भी आपको copies मिली, ठीक है? The output signal will be a different signal. That will be a distorted signal. That will be called as delay distortion. The distortion in the signal which happened because of the delay in various subjects of the same signal that came across. ठीक है? अच्छा, phase distortion यहाँ पे होगा ना? क्योंकि again there will be change of phase when we get the same copy of signal at different times. Okay. Then we have delay distortion in wired medium. Delay distortion दूसरे तरीके से भी बोलते हैं. Delay distortion क्या होता है? Delay distortion हो गया कि अगर आपके जैसे मैंने कल बोला था, if you have a medium and if this medium has filter characteristics like low pass, like this, ठीक है? Now you are allowing the composite signal to pass through it. So कुछ 5-10 लेक्चर पहले मैंने बोला था कि जो हमारे मीडिया होते हैं, जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, they don't look to this signal as composite signal. वो इसको क्या देखते हैं? as a mixture of simple signals. So वो क्या करते हैं? इतने खतरनाक होते हैं, इनका फूरियर सीरीज इनको पहले पता होता है कि कौन सी सिग्नल बनी हुई है. So when it is a composite signal, it will be having this form. So इसमें इसका DC कंपोनेंट भी जाएगा, इसमें इसकी सिग्नल जाएगी पहला, उसके बाद ये जाएगी, समझे? उसके बाद ये भी जाएगी, ये सारी सिग्नल जा रही हैं. एट लास्ट दिस डिवाइस विल गेट द सिग्नल बैक. अब चूंकि लो पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऐसे है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द पावर या आउटपुट वोल्टेज. एज यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, द आउटपुट इज एटेन्यूएटेड विद अ डिफरेंट फैक्टर. ऐसा समझ? तो इसका मतलब है जो पहली वाली सिग्नल है, यानी कि डीसी सिग्नल, वो पहले ही आप पहुंची गई समझ टी नॉट पर. लेकिन जो ये वाली सिग्नल्स है आगे वाली हार्मोनिक्स, वो थोड़ा सा आगे पहुंचेंगे. वो जो हम बात कर रहे थे इससे पहले, दैट वाज ऑफ मल्टी पाथ. ठीक है? दिस इज नॉट केस ऑफ मल्टी पाथ. ये हमारी एक ही पाथ का केस है, जहां पे वी हैव लेट अस सपोज अ कॉपर केबल, इथरनेट, व्हाटएवर, ठीक है, जहां से हम अपनी कंपोजिट सिग्नल, डिजिटल सिग्नल डाल रहे हैं. लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो आपका मीडियम है, इट चेक्स इट वर्क्स विद इट्स इटर्निटी, यानी कि असल में जो है, समझ आया, विद इट्स बेस. तो इसकी जो बेस है वो है कि मैं बनी हुई हूं बहुत सारे कंपोनेंट्स की. मेरे पास जीसीपी है, मेरे पास फंडामेंटल कंपोनेंट है, मेरे पास सारे हार्मोनिक्स हैं. अब क्योंकि ये मीडियम हर एक फ्रीक्वेंसी के साथ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बरतेगा, बिकॉज़ इट हैज लो प्रैक्टिकल लो पास कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर इसके आइडियल लो पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते, दे वुड हैव बीन लाइक दिस. उसका मतलब ये हर एक फ्रीक्वेंसी को बराबर छोड़ता, सेम पावर पे छोड़ता. लेकिन ऐसा नहीं है. जो हायर फ्रीक्वेंसीज है, दे विल बी मोर एटेन्यूएटेड, दे विल बी मोर एटेन्यूएटेड. ठीक है? अगर आपको याद होगा, जब हमने फिल्टर्स पढ़ा था इन सिग्नल, मैंने आपको बोला था जो फिल्टर इट इज नथिंग, इट इज सिंपली एन एटेन्यूएटर. क्या करता? बट कौन सा एटेन्यूएटर? फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव एटेन्यूएटर, है ना? ये भी एटेन्यूएशन ही करता है जैसे नॉर्मल रेजिस्टर एटेन्यूएशन करता है. तो अगर आप ऐसे बनाएंगे एक रेजिस्टर सर्किट, सो दिस इज योर इनपुट वी इन, और आप यहां पे बनाएंगे एक सिंपल स्टेप एटेन्यूएटर. ठीक है? R1 R2, and you will take output across R2, so this is VR2. So this VR2 will be a voltage, having a voltage lower than this Vin, that is will get an attenuation. मगर ये जो रेजिस्टेंस वाला सर्किट आपने यहाँ पर लगाया, ठीक है, दिस इज ए सिंपल एटेन्यूएटर. आप यहाँ पे वोल्टेज कोई भी लगाओ, AC लगाओ, DC लगाओ, AC लगाओ विद एनी फ्रीक्वेंसी, ये हमेशा एक ही इक्वेशन को फॉलो करेगा, दैट इज द वोल्टेज डिवाइडर इक्वेशन. ठीक है? तो हमेशा अगर ये R1 R2 सेम हुए, फॉर एग्जांपल, इसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा दैट विल बी हाफ ऑफ द इनपुट, वो हमेशा हाफ होगा, चाहे वो 50 हर्ट्ज की AC हो या 10,000 किलोहर्ट्ज का RF हो. ठीक है? सो वो R1 will be divided by 2 because you are using the resistance. Now if you are using the different things like capacitors and inductors in the same circuit, ठीक है, because capacitors and inductor जो आपके पास है, they are
frequency selective attenuators or they are frequency selective resistors. Attenuator को छोड़ो, the capacitance and inductance are frequency selective resistors because they have things like XL and XC that are related to frequency. Their resistance is their capacitive reactance, their resistance is their inductive reactance. That depends on frequency. So they are frequency dependent resistors. So when I use them as attenuators, the whole thing will become frequency selective attenuator. Means attenuation जो होती है कितनी होगी that depends on the frequency you are using. तो वही है. तो जितनी frequency बढ़ाएंगे, the attenuation will increase. और एक टाइम पहुंचेगा when it will be fully attenuated. ठीक है? So you won't get any output signal. अब चूंकि हर एक पार्ट भी यहाँ पर है, वो जब दूसरे साइड से पहुंचेगा, it won't be like this. A नॉट आ गया इसलिए कोई मसला नहीं, चलो दूसरी भी आ गई ऐसी कोई मसला नहीं, लेकिन जो ये तीसरी आ गई it was A/4 saturation levels. उसके बाद ये जो पहुंच गया A/7 पहुंचे और ये जो पहुंचा वो A/21 पहुंचा because of these attenuation factors. So what will be the output? It will be discharge. समझे? मगर हुआ किसकी वजह से? हुआ इसकी वजह से कि आपके पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स सिग्नल में थे, they were delayed by single मतलब different time, ठीक है, और they were attenuated by different time, तो उनकी वजह से डिस्टॉर्शन हो गया. That is called as नहीं यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर करना है. That will be called as distortion due to attenuation. वहाँ पे attenuation हो रहा है, ठीक है. डिले डिस्टॉर्शन हो गया जब डिले हो जाएगा. The same components, ठीक है, going through the same medium can't take the same speed, and obviously because they have different frequencies, simple, so they won't reach, all of them won't reach at the same time on this side, so that will be called as delay distortion. ये दो distortion है, sorry. So एक हो गया attenuation distortion, दूसरा हो गया delay distortion. This is the delay. जो भी यहाँ पे बोला ना ये divide हो गया, ये 4, ये 2, ये, this is attenuation distortion. डिले डिस्टॉर्शन हो गया अगर आपका A नॉट है, यहाँ पे कोई चीज है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे इसको प्लस T हो जाएगा, प्लस TD, यहाँ पे हो जाएगा इसको प्लस TD. So there is some delay that will be added. अब ये जो डिले डिस्टॉर्शन आपका होता है या मल्टीपास होता है, इससे हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिजिटल में होती है, that is called ISI, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस. क्या सीधा सा इंटर सिंबल इंटरफेरेंस. So what is a symbol? Symbol is a signal element. Symbol is a signal element. It can be an analog signal element, it can be a digital signal element. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना सर, एनालॉग सिग्नल एलिमेंट क्या होता है, डिजिटल सिग्नल एलिमेंट क्या होगा. एनालॉग सिग्नल एलिमेंट को फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग कीइंग, सुना करा, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग. लेट अस सपोज यू आर यूजिंग एफएसके. एफएसके में आप क्या करते हैं, दो फ्रीक्वेंसीज रखते हैं. इफ इट इज BFSK, बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, तो आप बोलते हो इफ देयर इज F1 दैट मींस 0 हमें ट्रांसमिट करना है, इफ इट इज F2 हमें 1 ट्रांसमिट करना है. सो जो ये F1 और F0 है ना, ठीक है, दे विल बी टेकन एज सिंबल्स. फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग फेज शिफ्ट की, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की, QPS की. सो हाउ मेनी फेजेस यू विल यूज, 4. कौन सा, 0, 90, 180, 270, ठीक है ना, 240 की 270, 270, ठीक है ना, 4 फेज इस्तेमाल करेंगे. तो वो 4 फेज क्या बन गया आपके, 4 सिंबल. फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वहां पे क्या क्या चीजें लेते हैं आप, फेज भी लेते हैं और एम्पलीट्यूड भी लेते हैं. तो वो एक एम्पलीट्यूड और एक फेज, दैट विल बी ए सिंबल. तो वहां पे हम असल में क्या भेजते हैं, एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होती है, डिजिटल. अब देखो डिजिटल इंफॉर्मेशन और डिजिटल सिग्नल जब भेजते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कौन सी एनकोडिंग है, NRZ-L, ठीक है. तो वो एक ट्रांजिशन जो होता है फ्रॉम 0 to 1 और फ्रॉम 1 to 0, दैट विल बी टेकन एज अ सिंबल. समझे तारा. इसी तरीके से मैनचेस्टर फॉर एग्जाम्पल, तो मैनचेस्टर में जो आपके पास होता है, नीचे से ऊपर जाना एट द इनपुट और उसके बाद बीच में वापस आना, तो वो जो पूरा एक पार्ट है वो हो गया एक सिंबल, बिकॉज दैट सिंबल विल बी ट्रांसफरिंग सम डेटा, ठीक है. सो ये जो सिंबल्स ऑफ ट्रांसफर आपके पास होते हैं जिसमें ये डेटा होता है, ये आ जाएगा एक दूसरे के बाद एक दूसरे के बाद. जैसे मैंने ये बोला, दिस इज द Fourier ट्रांसफॉर्म फॉर एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द सिंबल्स लाइक दिस, दैट वाज ट्रांसफरिंग बाय 1. अब उसके बाद मुझे और एक 1 आने वाला है, दैट इज दिस 1, ठीक है. सो इसके बीच में आपका 0 है. सो ये जो मैं ये सिंबल ट्रांसफर कर रहा था, ये मैं बात नहीं लिखूंगा 1 in between 0 in between 1,
ठीक है। लेकिन ये सिग्नल जो बन गई, जो डेटा सिग्नल आपकी बन गई, ये इसके लिए ऐसी चीज है ना, आया समझ। अब चूंकि ये वन जब वहां पे पहुंचे, इसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म करके हमें वो चीज मिली, और ये बिल्कुल ऐसे कट तो नहीं पहुंचेगी ना दूसरे साइड से, बिकॉज व्हाई, बिकॉज ऑफ डिले डिस्टॉर्शन, बिकॉज यू विल हैव सम डायलेशन इन टाइम, जहां पे आपके पास दिस वन विल कम इन। सो ये वन ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी फैल गई ना, इट्स कमिंग आउट ऑफ डिले एंड इट इज बीइंग डायलेटेड इन टाइम, तो ऐसे आएगा। अब ये बात कैसे करेगा, ये भी इसके बाद आएगा, तो ये भी ऑब्वियसली ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो एक सिंबल थी, ये दूसरी सिंबल थी, लेकिन इनके बीच में क्या हुआ, इंटरफ्रेंस, समझ आया। एंड दिस पर्टिकुलर इंटरफ्रेंस इज कॉल्ड इंटरसिंबल इंटरफ्रेंस, यानी कि एक ही चैनल आप सिंबल्स भेज रहे हो सीधे, आप डेटा एलिमेंट्स भेज रहे हो, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स लाइक मल्टीपाथ, लाइक डिले डिस्टॉर्शन, एटेन्यूएशन डिस्टॉर्शन, जो भी हो, मोस्टली बिकॉज ऑफ द डिले डिस्टॉर्शन, ठीक है, क्या हो जाता है काम, आपकी जो सिग्नल है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे नहीं पहुंचती है, इट गेट्स डायलेटेड इन टाइम, ये थोड़े से टाइम में बढ़ती है, ठीक है, लेकिन ये वहां तक पहुंचती है जब तक आपकी दूसरी सिग्नल आई हुई होती है। सो इफ आई गेट ए क्लियर कट, आई शुड हैव वन खत्म हो गया, उसके बाद 0 आना चाहिए, 0 खत्म, उसके बाद 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितनी गड़बड़ होगी, आपको 1 आना चाहिए, उसके बाद 0 आना चाहिए, और यहाँ से उसके बाद 1 है, उसका भी 0 यहाँ पे आना चाहिए, 0 शुरू होगा सर टच के साथ, वो क्या, उन दो की वहां पे लड़ाई होती है, 0 बेचारा खत्म। सो दिस इज कॉल्ड इंटरसिंबल इंटरफ्रेंस, व्हेन यू हैव इंटरफ्रेंस between the symbols on a single channel that are coming one after the other. Okay, then we have the last thing. और जब एनालॉग में इंटरसिंबल्स इंटरफ्रेंस होती है, इट्स कॉल्ड जिटर सिंबल, इसमें एनालॉगस में ही इट विल बी कॉल्ड जिटर, द सेम नेम। एंड देन एट लास्ट है डिले, डिले हो गया सिंपल डिले। तो जिस तरीके से हम बोल रहे थे कि एटेन्यूएशन आपका होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मींस आपने कब भेजा और उसके बाद वो कब पहुंचा, ठीक है। सो दिस डिले, द जनरल डिले एज अ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट हैज नथिंग टू डू विद डिले डिस्टॉर्शन, इट इज सिंपल डिले, बिकॉज व्हेनेवर यू सेंड डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, this is transmitted, this is received. Let us take the digital communication into consideration. Once that zeros जा रही है, ठीक है, तो ये जा रही है 0 to 1. So सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम एक इंटरफेस लगा देंगे और हमें यहाँ पे बोलना है कि what is the data rate, उसको हम यहाँ पे डेटा रेट नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे ट्रांसमिशन रेट। That means at what rate is this particular source sending your bits. मींस अगर ऐसे तो आप लाइन खाओ, इसका वो नफर खड़ा फिर से करंट चेक कर बिट पर सेकंड, समझ गया, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसमिशन रेट, द रेट एट व्हिच a transmitter is sending the bits, ठीक है। उसके बाद अब लाइन आ गई आपके पास, ठीक है। अब ये जो नंबर ऑफ बिट्स आप सेंड कर रहे थे सेंड एट अ पर्टिकुलर रेट, क्या बराबर इसी रेट पे ये सिग्नल्स यहां चलेंगी? हमारे पास जो आइडियल केस है वो ये बोलता है कि जो ही मैंने यहाँ पे 1 भेजा, ठीक है, बिल्कुल उसी टाइम पे यहाँ पे 1 दिखना चाहिए, आइडियल। नहीं, जो ही मैंने इस लाइन को यहाँ पे अप किया, ये यहाँ पे भी अप होनी चाहिए ताकि यहाँ पे इस बंदे को दिखे कि हाँ 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से उसके बाद आपने 0 भेजा, तो ये लाइन डाउन होगी, इसी टाइम पे बिल्कुल इसी इंस्टेंट में डाउन होनी चाहिए, और आपको उसी टाइम पे पता चलेगा कि इट इज गोइंग डाउन, इट मींस कि डिले आपका 0 है। Now if you are increasing the delay, so इसका मतलब हो गया आपने यहाँ पर सिग्नल को 1 दिया, मींस ये अप हो गई। अब थोड़े देर के बाद आफ्टर टाइम डिले ऑफ टी, ठीक है, ये अप हो गई, समझ आ रहा? दैट इज कॉल्ड द डिले। सो व्हाट इज द डिले, कि आप ट्रांसमिशन रेट स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट द ट्रांसमिशन, उसके बाद कितने टाइम के बाद आपका रिसीवर डिवाइस को रिसीव कर पाएगा, ठीक है, दैट इज द डिले, द जनरल डिले। सर ये प्रोपगेशन डिले, ये हाँ, ये मान लो प्रोपगेशन डिले इसमें डिफरेंट प्रोपगेशन डिले असल में हम डिफाइन करते हैं
mostly in your systems. कौन से वाले सिस्टम? द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. इट्स नॉट ट्रांसमिशन लाइन. तो ट्रांसमिशन लाइन में प्रोपगेशन डिले बोल सकते हैं if there is some concept same, because if we take this whole line as a system, transmission line is a system obviously, so take this as a system, so then give the input x of t, output is again here x of t है ना, मगर यहाँ पे कहाँ पे चीज आई होगी x of t minus td. तो वो जो td होगा कितने टाइम के बाद हम उसको रिसीव करेंगे, ठीक है, that will be known as ट्रांसमिशन डिले. बिल्कुल सही आपने बोला, इसका ट्रांसमिशन डिले. डिले से अच्छा इसको बोला ट्रांसमिशन डिले. ठीक है. सो दीज वर द जनरल कॉन्सेप्ट्स. एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस डेटा कम्युनिकेशन में इतने डिटेल में नहीं पढ़ने होते हैं, उन्हें फिर ठीक ठाक पढ़ा. इनके अपने सब्जेक्ट्स होते हैं असल में. सो दीज आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन. उसमें एक पार्ट आता है दैट्स कॉल्ड नॉइज. ठीक है. तो उसमें ही सारी चीजें देखी जाती है. अब पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको इलैबोरेट किया, वरना इतना नहीं है. सो अब हमें असल में देखना इनको रिलेटेड टू जो मैंने कल बोला था योर मीडिया. सो अब हम मीडिया को पढ़ेंगे और दिमाग के पीछे एट द बैक ऑफ द माइंड वी विल हैव दीस थिंग्स. इन फैक्ट टू थिंग्स that we have to keep in mind. What are those two things? एक हो गए ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, TI में, ठीक है, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स. और दूसरे हो गए डेटा पैरामीटर जो हमने इससे पहले पढ़े थे. दैट इज योर डेटा रेट, डिजिटल बैंडविड्थ, एनालॉग बैंडविड्थ एक्सेट्रा. सो इनकी राव से हमें पढ़ना पड़ेगा हमारी मीडिया. ठीक है. तो सबसे पहला मीडिया जो आपने देखा था दैट वाज द वायर्ड मीडिया. इसको हम बोलते हैं कॉपर. हां, मीडियास पढ़ने हैं. कौन-कौन से मीडियम्स होते हैं वो पढ़ना है. हां, वो तो हमने कल पढ़ा था कौन-कौन सा होता है. अब हमें डिस्कस करना है उनको, मगर with respect to transmission impairments and our digital analog data rate, bandwidth, throughput and other things. So सबसे पहले जो हमारे फर्दर कॉपर मीडिया में सबसे पहले जो आपकी थी that was क्या बोला मैंने, ठीक है. सो ट्विस्टेड पेयर जो है स्पेयर, तो इसका मतलब ट्विस्टेड पेयर से पहले कुछ होता, तो वी वुड हैव बीन अ नॉर्मल पेयर, नॉर्मल वायर पेयर. सो व्हाट डू वी रिक्वायर अ पेयर? व्हाई नॉट अ सिंगल वायर टू सेंड द डेटा? क्योंकि सिग्नल एक ही होती है ना, सीधे जाएगी. वेरी गुड. क्योंकि वी नीड ऑलवेज नीड अ रेफरेंस, बिकॉज़ व्हेन वी हैव रेफरेंस देन ओनली वी कैन सेंड. So whenever we send data from transmitter to receiver using wired media, we at least look at 2 copper wires, ठीक है, for simplex communication. अगर full duplex या half duplex हो फिर कुछ और उसी बात देखा जाएगा. लेकिन फिलहाल सिंपलेक्स कम्युनिकेशन में एक साइड से TX होगा और दूसरी साइड से RX होगा. सो यू नीड 2 लाइन. ठीक है. सो उनमें क्या लाइन होती है? एक होती है आपके पास सिग्नल लाइन और दूसरी रेफरेंस लाइन और कॉमन. और ये जो कॉमन रेफरेंस लाइन होती है ये दोनों साइड से नॉर्मली इनकी ग्राउंड्स के साथ कनेक्टेड होती है. So that everything is common. उसका पावर वाला ग्राउंड, कम्युनिकेशन वाला ग्राउंड कॉमन, यहाँ का पावर वाला ग्राउंड, कम्युनिकेशन वाला ग्राउंड कॉमन, और ये लाइन भी कॉमन. ठीक है. सो दैट यू कैन इजीली हैव द वोल्टेज.
ट्रांसमीटर को सेंड करना है, रिसीवर को सेंस करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। दो चीज़ें हमेशा दिमाग में रखनी है रिसीवर को भी और ट्रांसमीटर को। वन इज द वोल्टेज लेवल, द सेकंड इज द टाइम। वोल्टेज लेवल और किस टाइम है, वोल्टेज लेवल और किस टाइम है। तो बस ये दो चीज़ें सही हो जाए तो कम्युनिकेशन सही हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आसान है बनानी, क्योंकि अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर है एंड आप डालना चाहते हो केबल, ठीक है, तो आपको लगेगी एक तार 10 मीटर की और दूसरी तार 10 मीटर की, तो टोटल कितने लगे 20 मीटर। मगर ट्विस्टेड पेयर वायर क्या करता है, बोलता है नहीं हम ऐसे नहीं जाते, हम ऐसे करेंगे। सो केबल विल गो लाइक दिस, सुना, जैसे कॉइल आपके पास हो, जो आपके पास इमरान कॉइल होती है वो इतनी होती है, लेकिन जब उसको फिर लंबा करते हो कितनी लंबी हो जाती है। तो हम क्यों उसको वैसे करते हैं, उसका अलग कंसेप्ट, यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कंसेप्ट है, वरना अगर आप इसको भी क्या करोगे काम, इसको ऐसे करोगे, इट विल मूव टू दिस पॉइंट। सो क्यों कॉस्ट में आप परेशानी खुद को कर रहे हो, यू आर ट्विस्टिंग इट, जबकि आपकी जो पैरेलल केबल है, ठीक है, सो टू पैरेलल वायर्स वुड हैव डन द थिंग्स। Obviously there is something related to transmission impairments, and when things are related to transmission impairments, that means they are obviously related to data parameters, है ना। कैसे ये मुझे those are a relation, ये जो है they are inversely proportional to this, है ना, ये हमें पहले पता है। More the transmission impairments, less will be these things, less will be data rate, less will be throughput, less will be data, less will be channel capacity and other things, है ना। channel capacity की फॉर्मूला में पढ़ी है ना, Shannon's, so क्या है, channel capacity is equal to log to the base 2 of 1 plus SN, है ना। so channel capacity directly related to SN, so when you have more signal to noise ratio, you will have more channel capacity. When you have more channel capacity, you will have more bandwidth. When you have more bandwidth, you will have more throughput. So all are related. They are different but are related. Okay. अब यहाँ पे क्या गड़बड़ ऐसी है कि हमें ये चूज करना पड़ा ट्विस्टेड पेयर वाला, ठीक है। सबसे पहली गड़बड़ जो यहाँ पे है, that is it is more prone to interference. क्या ये prone to interference, पैरेलल, ठीक है। इसमें इंटरफ्रेंस वो कौन सी वाली इंटरफ्रेंस, इंटर चैनल और आउटसाइड इंटरफ्रेंस, दोनों। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली थी हमारे पास सीधे पैरेलल दो वायर्स अगर हम जोड़ के चलेंगे, सो वी विल हैव two things that will create the problem. The first problem, one is interchannel interference, the second is outside interference. अब देखेंगे वो क्या है। इंटरचैनल इंटरफेरेंस हो गया, बड़ी केबल है, ठीक है, उसमें एक पेयर जा रही है यहाँ पे सीधे और दूसरी जा रही है यहाँ, इसमें अपनी सिग्नल्स रन हो रही है, इसमें अपनी सिग्नल रन हो रही है, ऑब्वियसली दे विल इंटरफेयर, ठीक है। ये कौन सी इंटरफेरेंस हो गई, इंटरचैनल। व्हाट इज द आउटसाइड इंटरफेरेंस हियर, जहां से आपके पास 50 हर्ट्ज की पावर लाइन जा रही है, ठीक है, 220 वोल्ट आरएमएस, एंड इट्स क्रिएटिंग इट्स ओन फील्ड आगे इसकी फील्ड में, गॉट इट। सो आपके आउटसाइड इंटरफेरेंस एज वेल एज इंटरचैनल इंटरफेरेंस हैव बिग प्रॉब्लम्स ऑन इट। व्हाई सर आउटसाइड का क्या बोला, आउटसाइड पावर लाइन जो आता है नॉर्मली from 50 hertz to 120 volt, you will get interference also from outside world. जो इंटरचैनल को चैनल इंटरफेरेंस ऐसा ही बाकी चीज की सारी इनहेरिट है ना, जो ये आउटसाइड इंटरफेरेंस इज नॉट इनहेरिट, ये तो बाहर से आता है। पावर लाइन बाहर नहीं होगी तो नहीं होगी इंटरफेरेंस, दूर होगी नहीं होगी इंटरफेरेंस, नजदीक होगी तो होगी, सो इट्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। सर जो आपने कहा ना ऊपर इंटर चैनल, उसमें हमें एक ही चैनल में दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की सिग्नल्स जा रही है,
इसमें ऊपर वाला नहीं नहीं नहीं, ये दूसरी वाली इंटरफेरेंस में बोल रहा हूँ जहाँ पे 4 तारें जा रही हैं। ये 2 तारें जा रही हैं, ये एक सिग्नल ले रही है, समझा? और इसी बंडल में हमने दूसरी तार लगाई हुई है जो दूसरी सिग्नल ले रही है। सो इट इज द इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइन इन द मीडिया, नॉट बिटवीन द सिग्नल द चैनल्स ऑन द सेम लाइन। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग जो हमने कल डिस्कस किया। मैंने उसी वक्त बोला था हम 2 तरीके से लेते हैं इसको। सो इस वक्त जो हम ले रहे हैं दैट इज बटन, मतलब वो है कि जो लगे प्लास्टिक शीट जैसे होता लगाते हैं, ठीक है। फिर अंदर से बहुत तारें जा रही होती है ना। सो एक पेयर जो जा रहा है वो जा रहा है एक सिग्नल लेके, दूसरा पेयर जो जा रहा है वो जा रहा है दूसरी सिग्नल लेके। जैसे मैंने बोला टेलीफोन वायर्स, टेलीफोन वायर्स में 10 20 60 पेयर्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट यूजर्स को जाती है। अब ये एक यूजर की है, दूसरे यूजर की है। अब ये क्या करते हैं हम, दे कैन क्रिएट इंटरफेरेंस, ठीक है। और हाँ, ये दोनों सेम सिग्नल के डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी हो सकती है क्या होगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो टेलीफोन है ना उसका हर एक पेयर अलग अलग यूजर को अपना अपना जाता है। सो बोथ ऑफ देम आर कैरिंग द सिग्नल्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, दैट इज द बेस बैंड, द वॉइस दे आर कैरिंग, वोल्टेज सिग्नल्स ऑफ वॉइस, समझ गया? अगर आगे यहाँ पे तो खतरे से है ना, अगर आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करोगे, व्हाई? क्योंकि आपने पहले मीडिया को डिफरेंट रखा है, सो व्हाई टू यूज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, समझ गया? यू यूज सेम फ्रीक्वेंसी बट अगेन दे कैन इंटरफेयर। और टेलीफोन लाइंस में अगर ऐसा इंटरफेरेंस हो जाता है, यू गेट वन मोर ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस दैट इज कॉल्ड क्रॉस टॉक। क्या सुना? क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक इसमें वायर नहीं लगा सकते, ठीक है? वो इसमें भी होता है ना, वो वायरलेस में भी होता है, वायर्ड में भी होता है। सो वायर्ड में होता है, लैंडलाइन उठा लिया, वहां से कोई और बात कर रहा है किसी और के साथ, ठीक है, हम सुन रहे हैं, तो कैसे हो गया कि हमने उनकी सिग्नल पकड़ ली, उसकी इंटरफेरेंस हमारे में आ गया, ठीक है। सो वी गॉट द क्रॉस टॉक, वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से आपने कभी टेलीफोन उठा दिया, ठीक है, एंड यू गेट इट शोर पीछे से, ठीक है, वो शोर किसका 50 हर्ट्ज का। So 50 hertz is audio frequency, है ना? Because you normally listen frequencies from 20 hertz. So अगर 50 hertz है तो आराम से सुनोगे, तो जो होती है ऐसी frequency 50 hertz. तो मीन्स कहीं पे पावर लाइन बहुत नजदीक आपके टेलीफोन लाइन की है और उसमें सही चीज नहीं की हुई है ताकि उसको रिमूव कर you get these interference, ठीक है? तो आउटसाइड इंटरफेरेंस एंड इंटरचैनल। अब मसला है क्यू, इनमें क्या इंटरफेरेंस कर सकते। होता यह है कि अगर आपने यहां पर सिग्नल भेजी, दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट। व्हाट इज बीइंग डन बाय द रिसीवर एट द लोएस्ट लेवल, ठीक है, एट अ वेरी लोअर लेवल रिस्ट्रिक्शन, कि जिससे हमें पता चलेगा इसमें हम मिल रहा है लॉजिक 1, लॉजिक 0, लॉजिक 1, लॉजिक 0। क्या सुबह समझ क्या कह रहे हैं? ये कुछ नहीं करता है, इट सिंपली सबट्रैक्ट्स द सिग्नल लाइन फ्रॉम द कॉमन लाइन, और कुछ नहीं। सो व्हाट इज डन एट द आउटपुट? सबट्रैक्शन मींस अगर आपके पास यहाँ 5 वोल्ट लाइन आ गई और यहाँ पे 0 वोल्ट आ गई, 5 minus 0 is 5, this is logic 1। और अगर आपके पास यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया, minus 0 वोल्ट आपको करना है is equal to 0, so you get a logic 0, you get a logic 1 and logic 0 by simple subtraction। ये तो पावर में भी करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे बैटरी है, ऐसे बैटरी, ये दूसरी बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव, ये भी 5 वोल्ट बैटरी, ये भी 5 वोल्ट बैटरी। पूरा समझना सवाल। मैंने इनके -5 प्लस को किया कनेक्ट, अब मैं ये लाइन ले रहा हूँ आगे, आई एम मेकिंग इट एज रेफरेंस, और ये लाइन आगे ले रहा हूं, ठीक है। सो जब मैं यहां पहुंचूंगा दूसरे साइड पे, मैं मुझे बोली इसकी वोल्टेज कितनी है, हाउ डू यू चेक व्हाट इज इट्स वोल्टेज? शाबाश, हमें ऊपर वाली वोल्टेज, हां ऊपर वाली लाइन की वोल्टेज में मेजर करनी है मैथमेटिकली, वोल्टमीटर लगेगा ऑब्वियसली मैथमेटिकली। सर पोलैरिटी हमने पोलैरिटी दी है ना, प्लस माइनस ग्राउंड एडिटिव पोलैरिटी होगी कि सबट्रैक्टिव पोलैरिटी? ए गॉट यू, हमें कुछ नहीं करना, वी सिंपली सबट्रैक्ट, क्योंकि ये हमने ग्राउंड रखा है ना, इट इज टेकन एज 0 वोल्ट देयर। सो नाउ व्हेन आई सबट्रैक्ट, यू विल गेट 5 वोल्ट,
ठीक है। अब इसकी देखो यहाँ पे कितना होगा, अगेन यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। मानिए जब सबट्रैक्ट करोगे यहाँ पे -5 है ना, तो -5 - 0 वोल्ट इज -5, means the subtraction will give that this is -5 volt and this is +5 volt with respect to ground। वही वहाँ पे भी करना है, वहाँ पे अब सिग्नल है तो यहाँ पे पावर था, समझिए कहाँ चला ये बड़ी बड़ी टर्म। सो यहाँ पे भी वही चीज होता है। सो अब हुआ क्या, अगर यहाँ पे पावर लाइन आ गई, so now there is a power line here, it will obviously induce voltage, किसमें ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगी, इस वाली लाइन में नजदीक का, बिकॉज़ दे आर पैरेलल लाइन, ठीक है। इसमें लेट अस सपोज इसने 2 वोल्ट इंड्यूस किए, और ये वाला जो है थोड़ा सा दूर है, ये इसमें करेगा फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट इंड्यूस, ठीक है। सो जब लास्ट में पहुंचेंगे, सो जो ये सिग्नल आपके पास है वो वाली 0 वाली, दैट हैज नाउ मूव्ड टू 2 वोल्ट, और जो वो वाली सिग्नल है वहां पे दैट इज मूव्ड टू 6 वोल्ट, ठीक है। सो अब जब वो 0 होगी तो दैट इज मूव्ड टू 1 वोल्ट, समझे तारा क्या है। जब यहाँ पे 0 चलेगा तो 1 वोल्ट हो रहा है इंड्यूस, और जब वहां पे 5 वोल्ट होगा तो वो बढ़ेगा 6 वोल्ट, और ये हमेशा 0 ही होता है तो ये 2 वोल्ट पहुंचे। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, जब 6 - 2 हो गया 4 वोल्ट, 1 - 2 हो गया बोला सर गड़बड़, व्हाट शुड हैव बीन द थिंग्स 5 and 0, so they are getting different voltage, this is the hell, ठीक है। इस सिस्टम के सब गड़बड़ करेगा, तो किसी को अकल आ गई, उसने बोला हम क्या करेंगे काम, we will simply twist the cable। ट्विस्ट करने से क्या होता है काम, अगर आप देखेंगे एक छोटा सा टुकड़ा, तो इसमें आपके पास अगर यहाँ से पावर लाइन फिर से जा रही है, ठीक है। सो दिस इज द सिग्नल केबल हियर एंड दिस इज द न्यूट्रल केबल फॉर एग्जांपल, कॉमन केबल। लेकिन दूसरे ही साइड क्या होता है काम, न्यूट्रल केबल ऊपर आ जाती है, सिग्नल केबल नीचे जाती है, ठीक है। फिर और आगे चलेंगे, फिर आगे आपके सिग्नल ऊपर, न्यूट्रल नीचे, फिर न्यूट्रल ऊपर, सिग्नल नीचे, ऐसे ही एन नीचे, एस ऊपर, एन ऊपर, एस नीचे। अब जो पावर लाइन है वो क्या करेगी काम, वो इस तरह सपोज वी टेक दिस थिंग, इसमें करेगी 2 वोल्ट इंड्यूस, इसमें करेगी 1 वोल्ट इंड्यूस, फिर यहाँ पे इसमें करेगी 2 वोल्ट इंड्यूस, उसमें करेगी 1 वोल्ट इंड्यूस। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितने वोल्ट इंड्यूस हो गए दोनों में, इसमें यहाँ से 2 हो गए, यहाँ से 1 हो गया, यानी कि इसमें हो गए 3 वोल्ट इंड्यूस, इसमें यहाँ से 2 हो गए, यहाँ से 1 हो गए, इसमें भी हो गए 3 वोल्ट इंड्यूस। व्हाट इज 3 - 3? 0। So residue 0। शाबाश, के प्रकार पढ़े मुझे बोलो, ये आया नहीं, ये आई समझ, ये भी आई समझ। तो व्हाट विल हैपन इफ आई डेविस्टेट, कि आपको दोनों तारों को अब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है पावर लाइन के साथ। जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दोनों सेम इंड्यूस करेंगे, एंड एट लास्ट में यू सबट्रैक्ट, यू विल गेट अ 0, दैट मींस यू आर सिंपली गेटिंग आउट द इंटरफेरेंस, ठीक है, बाय सिंपली ट्विस्टिंग दिस केबल। अब मसला है कि जो आपके पास यहाँ पे, व्हाट अबाउट दिस ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट में कैसा प्रॉब्लम, मैं तो मैं 2 ट्विस्ट ले रहा था, व्हाट अबाउट अ सिंगल ट्विस्ट, सिंगल ट्विस्ट में तो फिर से प्रॉब्लम है, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है। अगर इफ आई एम टेकिंग क्युमुलेटिव एवरेज या बाकी चीज, देखिए एक ट्विस्ट में क्या, तो सिंपली इसमें ये है कि दैट इसमें भी 2 बनाओ, हो गया मसला क्लियर, सुना। अगर आप इसको अलग से लोगे ना, एक ट्विस्ट को इसमें लिखते हैं, तो इसमें 2 वोल्ट आ जाएंगे, इसमें 1 वोल्ट आ जाएगा, तो एक ट्विस्ट में है ना प्रॉब्लम, फिर भी रेजिस्टर तो इसमें है ना, समझे आप। सो इसमें क्या करेंगे ना, मैं बोलूंगा आसानी से इसको और 2 कर लो, ऐसे तो होगी ना, फिर से ना लिखा, ठीक है। मैंने क्या किया, असल में मैंने नंबर ऑफ ट्विस्ट्स पर यूनिट लेंथ बढ़ा दी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्विस्ट्स पर इंच, ट्विस्ट पर टीपीआई। सो जितनी आपके पास खतरनाक केबल होगी, जो हाई डेटा रेट्स के लिए इस्तेमाल होती होगी, उसमें टीपीआई बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वो आपको एक सिग्नल में एक तार मिलेगी, उसको ऐसे ट्विस्ट किए हो गए, ऐसे
दूसरी तार मिलेगी उसको ऐसे ट्विस्ट होंगे, समझ गया? So here TPI is less, here TPI is more, here here TPI is less, here TPI is more. तो ट्विस्ट पर जितना आप ज्यादा बढ़ाओगे उतना आप इंटरफेरेंस को क्या करोगे, और इंटरफेरेंस को कम करेंगे तो कौन सी चीजें बढ़ेंगी? Actually the channel capacity, because you will be increasing the signal to noise ratio. That's the main thing mathematically जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है? So increasing the twist spread. ये हो गया एक चीज जो हम इसमें करेंगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। What next? दूसरी चीज हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास कॉपर वायर है, अब ये हमने बोला ट्विस्ट में तो सीधे ट्विस्ट पे आ गया, ठीक है? इसलिए मैंने बोला कि ट्विस्ट पेयर वायर क्यों कहते हैं और ट्विस्ट लगाते हैं। अब मतलब चाहे आपकी ट्विस्ट पेयर वायर में चाहे कितने भी ट्विस्ट पर इस लगाए, क्या लिख दिया आपने, इट्स स्टिल एक्ट्स एज अ लो पास, सुना? इट्स अ कॉपर मीडियम, तो obviously it is a low pass filter. अब बीइंग अ लो पास फिल्टर, आप इसमें जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, मत कर सकते हो, क्योंकि इट इज अ लो पास फिल्टर, बैंडविड्थ नहीं है, फ्रीक्वेंसीज को छोड़ेगा, सुना? यहाँ फ्रीक्वेंसीज को छोड़ेगा ही नहीं, तो हमें कोशिश करनी है ना इसी को ठीक करने की, ठीक है? सो व्हाट वी कैन डू, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी ऐसे है तो अगर ऐसे होते ज्यादा अच्छा होता, अगर और ऐसे होते ये ज्यादा अच्छा होता। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ठीक करने हैं, जितने ये कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक होंगे उतनी इसकी बैंडविड्थ बढ़ेगी, ठीक है? सो उसके लिए हम ये विकल्प करते हैं यहाँ। तो पहले सबसे पहले जो हमने किया ट्विस्ट, the second thing that we can do with the twisted pair wires in order to increase its bandwidth, throughput, channel capacity and other things is to increase its AWG, that is the gauge factor. It's कशर पर gauge शुमार, gauge क्या हो गया, simply increasing the radius of the copper wire जो हम उसमें से जाने देते हैं। देखो लेंथ को तो हम कम नहीं कर सकते हैं ना, सर आपको ये इंक्रीज क्या करना है, gauge AWG को अमेरिकन वायर गॉज, ठीक है? सब शॉर्ट फॉर्म ऑफ अमेरिकन वायर गॉज, यानी कि जो आप डिफरेंट तारें इस्तेमाल करते हो ना सिगार, आप अगर कभी फिटिंग विटिंग की होगी आपके घर पे या कहीं पे, आप वो बिजली वाला बोलता है कि वो जिनसे 8 mm से 5 मीटर, पता जिनसे 5 mm से मीटर, पता जिनसे 10 mm 15 मीटर ऐसे बोलते हैं, ठीक है? तो mm क्या होता है, दैट इज गॉज। जितनी करंट ज्यादा होती है आपका जो ये कंडक्टर है ना उसका रेजिस्टेंस होता है मोर, so that such number of electrons will flow, so that resistance will go down, so that conductivity will, conductance will increase, not conductivity will remain same. So ये सारी यानी कि resistance will go less, वही हमें यहाँ पे भी करना है। If I do one thing, अगर मैं किसी तरीके से इसकी resistance कम करूँ, किसकी, अपनी तार की, so I will be able to increase, I will be able to do this right. How? Because it is a low pass filter, transmission line का मॉडल पढ़ा है ना, किसके आसान, रेजिस्टर, इसके सुना? So if I am able to reduce this resistance, I will be able to change the cutoff frequency, ठीक है? So in order to change the cutoff frequency, increase the cutoff frequency of that low pass filter, जिस जो ये वायर एक्ट करती है as, ठीक है? तो मुझे क्या करना होगा, I will have to decrease the resistance, और वो मैं कैसे करूँगा, obviously by increasing the gauge। वो कहाँ से आएगा, R is equal to rho L by A से। So rho is constant, ठीक है? Length is constant, क्या किस लोग पाई बटन में से 10 मीटर तक रखा, तो कोई कट reduce length, हाँ reduce length करेंगे, कंप्यूटर नजदीक रखेंगे, वो तो हमने पहले डिस्कस किया होगा, जितनी length कम रखेंगे obviously the things will increase। अब keeping length constant, so what I have to increase area of cross section. So when I increase the area of cross section, what will happen, the resistance will go down. When the resistance will go down, it will come as a factor that resistance has gone down in the transmission line model, and that will simply make my low pass filter characteristics good and in turn increase the bandwidth, ठीक है ना, bandwidth of the channel जो हमारी ये, this is a channel obviously, the twisted pair channel हो गया दूसरा विकल्प जो हम कर सकते हैं।
Then the third thing that we can use in order to increase the bandwidth, how? By decreasing the transmission impairments like distortion and interference and noise, is by shielding this cable. इसको क्या करना है? We have to shield it. तो shielding means अब आपके पास कोई स्ट्रिप पेयर वायर है, ठीक है? So we were able to cover the interference up to a certain amount by twisting it, ठीक है? But not 100%. तब तो मुझे TPI कितना लगाना है? Infinity. तो इसीलिए क्या करते हैं काम? नेक्स्ट चीज बोलते हैं कि बस क्या करो हम इसको बाहर से शील्ड ही करते हैं फ्रॉम EMI एंड RF, ठीक है? सो देयर शुड बी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस. उसके लिए मुझे कौन सी केज बनानी है? गाउसियन केज बनानी है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा केवल 12th क्लास या आपने और पढ़ा होगा आप EMF, ठीक है, जो आपके पास एक कैविटी होती है जो मेटालिक ट्यूब ये होता है एनक्लोजर, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स उसके अंदर नहीं जाते. सो दैट इज व्हाट कैन बी डन. तो वही हम यहाँ पे करते हैं. सो वी शील्ड इट, हम इसको लगाते हैं ऊपर से मेटालिक शील्ड, हम इसको उसी के अंदर रखते हैं, ठीक है? नाउ इफ EMI और RFI comes, that would get in, so out of interference. So there won't be any EMI RFI interference if you shield it. वही जो मसला शील्ड कितने छिकारा? शील्ड दो चीजों से होती है. Either it is braided with wire, so that is braided wire shielding, और दूसरी शील्ड जो हमारी होती है that is called metal film shielding. Braided, BRAID, braided wire. Braid shorting जो यार? Braid shorting, braid का चोटी ना, चोटी किसी का बनाते हैं? बाल. तो बालों की चोटी जब बनती है, छोटी छोटी बहुत सारे बाल होते हैं ना, लेकिन जब एक चोटी बनती है तो कितनी मजबूत चीज होती है, and you can put anything. तो जो क्लिप था उसमें अच्छे यहाँ चोटी, समझे? तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे. So आप क्या करेंगे? You have to keep the cable flexible. So अगर आप इसको सीधे पाइप में डालेंगे, that won't be better. समझ आ रहा है ना? So चूंकि आपने पाइप में डालना, फॉर एग्जाम्पल आप ये केबल यहाँ से जा रही है इतनी सारी, so it has to be flexible. It should bend around, ठीक है? It should be, you have to loop happen करें. अगर आप इसको मेटल पाइप में से डाल नहीं कर सकते हैं ना, so what do you need to braid it? So आप बालों की नहीं बनाते, आप किसकी बनाती है? वायर्स की ब्रेड बनाते हैं. उसी से इस पूरे को क्या करते हैं? बराबर उसी तरीके से जैसे बालों में करते हैं. ताकि इसको बना वो अक्षरा बनाता है कैसे पे वंग पार, ठीक है? बराबर अगर आप केबल को खोलोगे उसमें भी वंग पार की होती है, यहाँ से ऐसे तो अंदर से कैविटी बनती है और बाहर से ब्रेडिंग होती है, ठीक है? केबल जो टीवी की केबल कभी खोल के देखी है? उसको नहीं, जब पहले खोलते तो ऊपर बाहर से होता है वो मेटल वायर, सोचना से बराबर वंग इक्वट को दैट्स कॉल्ड ब्रेडिंग, ठीक है? सो वो क्या बनाती है? वो आपके पास गाउसियन केज बनाता है इसके लिए, एंड देन योर EMI एंड RF doesn't go inside, ठीक है? मगर उसमें गड़बड़ है कि that won't give you full air tight. उसमें अगर कितनी भी ब्रेडिंग करेंगे तो थोड़ी सी जगह होगी ना, मे बी RF सिग्नल जो है वो हमारे सिग्नल से, तो व्हाट डू दे यूज? मेटल फिल्म शील्ड. मेटल फिल्म होती है, वो भी देखा होगा आपने, वो होती है वो संचुई तार नहीं होती, तो फिल्म जैसी होती है मेटल की, तो छोटा सा एल्युमिनियम फॉइल, बिल्कुल वैसे एल्युमिनियम फॉइल जैसा उस पर लगा के उसे, हाँ, तो व्हाइट कलर का एल्युमिनियम कलर, सिल्वर कलर. सर वो जो मतलब ऊपर पर जैसे, हाँ, तो ऊपर से ही होती है. अगर आप USB केबल कभी खोलेंगे, USB केबल खोलिए, खोलना देखना, ठीक है? कार्ड की कोई भी पुरानी USB केबल जैसा पैटर्न है ना, PVC हो गया वो प्लास्टिक, फिर वहाँ पे अंदर मिलेगा आपको पहले वो लिफाफ, फिर उसमें मगर ऐसा एल्युमिनियम लिफाफ, ठीक है? वो भी उस पर ऐसे ही लगा के होता है. अब आधे आपके पास ऐसे ट्विस्टेड पेयर वायर्स होती है जहाँ पे खाली ब्रेडिंग की होती है, सो दैट इज गुड. आधी होती है जहाँ पे खाली मेटल फिल्म शील्डिंग की होती है, दैट इज गुड. आधी होती है जिसमें दो
दोनों की होती है दैट इज बेस्ट। तो उसमें दोनों चीजें की हुई होती है सो दैट यू गेट वेरी वेरी लेस। ठीक है, इनके नाम फिर पढ़ते हैं कौन सी केबल है उसमें क्या क्या किया हुआ है। ठीक है, सो अब जो नॉर्मली आपके पास केबल्स होते हैं ना दे डोंट रन ए सिंगल पेयर, जैसे हमने देखा टेलीफोन वाले, ठीक है, यू डोंट रन ए सिंगल पेयर, बहुत सारे पेयर्स इसमें होते हैं। सो इफ यू टेक इथरनेट केबल दैट इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट लैन्स, ठीक है, लैन केबल जिसको बोलते हैं, उसमें आपके पास होते हैं 4 पेयर्स दैट मींस 8 वायर्स। तो हाउ दे आर पुट इनसाइड, सबसे पहले आपका पीवीसी शीट होगा दैट मींस द प्लास्टिक शीट। एक बच्ची को दिख रही है आप ट्विस्ट करें ऐसे 1 2 फिर 3 और 4, कितनी तारें उसमें होती हैं, कितनी पेयर्स बना के होती हैं, तो 2 2 करके होती है ट्विस्ट पेयर्स। ठीक है, सो यू गेट टोटल ऑफ 4 पेयर्स 8 वायर्स। अब मसला है, अब ये क्या करेंगे जो आप इनको अलग अलग से किया हो, यहाँ 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 आप ट्विस्टिंग की हुई है, ये आप किससे बचाएंगे, इंटरफेरेंस। मोस्टली कौन सा इंटरफेरेंस, ठीक है। फिर क्या आप कर सकते हैं काम, फिर आप इसको ऊपर से लगा दो ये ब्रेडेड वायर मेटल फिल्म, सो इट विल बी कॉल्ड एज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, now I have shielded it and internally it is twisted pair cable। अर्थ गसन ज्यादा पागल तो किस करन वो ये जो आपके पास ट्विस्टेड पेयर है तो इसमें पागल शील्ड पाछी ब्या एमिश पागल शील्ड पाछी ब्या एमिश पागल शील्ड पाछी ब्या एमिश पागल शील्ड पाछी ने की ब्या शील्ड पाछी एक पर फिल्म तो ते पाछी पागल पीवीसी। हाँ, आपके पास कॉपर केबल जो है दे स्टार्ट फ्रॉम 10 Mbps जिनकी बैंडविड्थ होगी एंड दे एंड एट 1000 Mbps। अब खुद ही देखो कितना फर्क है, the wire, the copper wires that will be taken 1000 Mbps connection, how they should be, they are such कल खराब। ठीक है, उन पे this is normally called as super shielded, ठीक है, film braided twisted pair wire। ये सब बकवास में किया होता है। सुपर शील्डेड एक होता है खाली शील्डेड, वो किसको बोलते हैं, इसको, ये खाली शील्ड। सुपर शील्ड होगा अंदर से आपका शील्ड फिर ऊपर से शील्ड। देन इफ इट इज शील्डेड यूजिंग फिल्म तो फिल्म आ जाएगा, एंड इफ इट इज ब्रेडेड तो ब्रेडेड भी आ जाएगा। समझ आया? सो ऐसे आपके पास केबल्स आती है और लैन केबल्स ही आती हैं जो बराबर इस लेवल तक जा सकती है। ठीक है, और जो आपके पास बेसिक केबल होगी सबसे बेसिक, उसमें शील्डिंग भी नहीं की होती है, खाली ट्विस्टिंग की होती है। ठीक, सो जनरली दीज टाइप्स ऑफ केबल्स आर कॉल्ड यूटीपी एंड एसटीपी। क्या कहना है, यूटीपी एंड एसटीपी। यूटीपी हो गया अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एसटीपी हो गया शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, देयर इज नो शील्ड। ये नहीं, ये मानते हैं क्योंकि इसमें पीवीसी खाली है ना, देयर इज नो शील्ड। दिस विल बी कॉल्ड एज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यू हैव ट्विस्टेड पेयर एंड देयर इज अ शील्ड। दिस विल बी कॉल्ड एज एसएसटीपी, दैट इज सुपर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। These are the general terms। अगर डायरेक्टली बोल रहे हैं तो मुझे कौन सी चाहिए, क्योंकि मुझे यूटीपी चाहिए, मुझे एसटीपी चाहिए, मुझे एसएसटीपी चाहिए। So what is unshielded twisted pair? That is twisted pairs with only PVC block ऊपर से covering। Then what is shielded twisted pair? That is twisted pairs and it has first a shield that can be braided, that can be film, ठीक है, and then you have PVC shield। What is super shielded twisted pair? That may have the twist, then we have individual shield, then will be overall shield, then PVC। ठीक है, so these are the three। इनको दूसरा तरीका भी है आपके पास जानने का टेक्निकली। सो दे आर या अच्छा इसके क्वेश्चन के मतलब उसना आप क्या था उनका नाम, थिक नेटवर्क। हाँ वेरी गुड, थिन नेटवर्क, थिक नेटवर्क भी था ना कुछ,
10 base 5 और 10 base 2 और 10 base 5, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से ऐसा भी इनके पास है। सो दे हैव 10 base t, इसी तरीके से 100 base t, 1000 base ये टीम की थिकनेस है। टी ना, टी हो गया ट्विस्ट रिपेयर, 10 हो गया डेटा रेट, बेस हो गया बैंड, बेस बैंड, देयर आर बेस केबल्स बिकॉज यू डोंट मॉडल इट आपके पास, बिकॉज द थिंग्स दैट यू डू हियर इज एनकोडिंग, क्या करा लाइन एनकोडिंग, ये जो सारी केबल्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये हम किस राव से पढ़ रहे हैं, सो दैट विल बी सेंडिंग डिजिटल सिग्नल्स ऑन देम, बिकॉज लैन जो मैं बोल रहा हूँ, लैन इज अ टेक्नोलॉजी wherein you have digital information and digital signals. So you'll be using NRZ and NRZI, Manchester differential message, these types of things. So they are not modulation techniques, they are encoding techniques. If there is modulation, तब ये बेस नहीं रहेगी, ये ब्रॉड बनेगी, तब आपको हो जाएगा 10 ब्रॉड समथिंग, ठीक है। So they are all base bands. T means twisted pair wire, and this gives their data rate, the maximum data rate that you can have, 10 Mbps, 100 Mbps and 100,000, ठीक है। उससे ऊपर अगर आपको चाहे, उसके बाद आपकी नहीं आती है बेस, उसके बाद आती है एफ, दैट इज हायर, ठीक है। इशू एक ही ख्याल होते हैं, मतलब ज्यादा जरूरत 10 Gbps लाइन, ठीक है, 100 Gbps लाइन, 1 Gbps लाइन, उसको गीगाबिट ईथरनेट कहते हैं, उसमें फिर ऑप्टिकल फाइबर आती है, फिर उसके बाद कॉपर नहीं आती। कॉपर कैन बी देयर बट वेरी शॉर्ट लेंथ, नॉट लॉन्ग लेंथ। सो दिस इज योर केबल, ठीक है। अब अगर जाना होगा दुकानदार के पास, उसको बोलना मुझे चाहिए ना, उसको 10 base t 100 base t समझ आ जाएगा, ना उसको SST PST समझ आएगा, उसको CAT समझ आ जाएगा। सो कैटेगरी CAT 4, CAT 5, CAT 5e, CAT 6, CAT 6e, CAT 7, CAT 7e, कैटेगरी क्या कैटेगरी कैटेगरी, ठीक है ना, कैटेगरी। इम्यूनिटी का है। हाँ। और यू कैन चेक ऑन बुक और लिटरेचर की कौन सी कैटेगरी यहाँ पे किस चीज के साथ वाबस्ता है, ठीक है। सर ये नहीं है कि मतलब ये इंक्रीज हो रहे तो कैटेगरीज कुछ हाँ अच्छी होगी। हाँ, ये नीचे की ओर जा रहा है बराबर, ये नीचे फॉर जो 10 base t है ना, और यहाँ जो सिंपल UTP है, वो होगी फॉर एग्जांपल CAT 4, वो ऐसा नहीं CAT 4 नहीं लिखा होगा बुक पे, मुझे तो याद नहीं है, ठीक है। यू कैन चेक इट ऑन बुक और लिटरेचर, वहाँ से लिखा होगा CAT 4, यहाँ से लिखा होगा इट इज 10 base t एंड इट इज UTP, इट इज 10 base t बट STP एंड इट इज 100 base t UTP, समझ आया। सो ये टेक्निकल, और वहाँ से इसको कौन सी कैटेगरी बोलते हैं। आज तक जो इस्तेमाल होती है, और यहाँ पे भी जो बिछाई हुई है, दैट इज CAT 6 और CAT 6e। कैटेगरी 4 केबल जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मीटर जाएगा 3 रुपए में, और जो कैटेगरी 7e केबल है ना, तो वही मीटर जाएगा आपको 100 रुपए में, इतना फर्क है। उसकी डेटा रेट ज़्यादा दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर हाई बैंडविड्थ। डेटा वो शीट लेगी क्या था ये? यहाँ कॉपर वायर कॉपर वायर का कौन सा वाला साइड? ट्विस्टेड, ठीक है। सो किस चीज के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं ट्विस्टेड पेयर वायर्स? तो डेटा कम्युनिकेशन में इनका सबसे बड़े दो जो एप्लीकेशंस है, कहाँ पे है? एक तो लैन्स, दैट इज ईथरनेट, और दूसरा टेलीफोन लाइंस। अब टेलीफोन लाइंस जब हम बोलेंगे, लेकिन हम टेलीफोन लाइंस को तो डेटा कम्युनिकेशन में लाएंगे नहीं नॉर्मली, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू सम डिजिटल कम्युनिकेशन। सो वी कैन अगेन पुट टेलीफोन लाइंस, बिकॉज हम टेलीफोन लाइन से ही चलाते हैं ब्रॉडबैंड, सो द ब्रॉडबैंड इज डिजिटल डेटा दैट कम्स ओवर टेलीफोन लाइंस, ठीक है। सो टेलीफोन लाइंस इज आल्सो द ट्विस्टेड पेयर वायर्स, क्या Ethernet and telephone lines with broadband. हाँ, सर हम टेलीफोन लाइंस को इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्योंकि ब्रॉडबैंड उसमें चलाते broadband हैं, चलाते वरना वो मतलब digital- दिमाग में समझ चाहिए टेलीफोन लाइंस में, लेकिन डिजिटल डेटा नहीं चाहता है एज सिग्नल। समझ आ रहा है? इट्स ओनली ईथरनेट केबल जिस पे आपके बिट्स चलते हैं एज बिट्स,
एज 0Z1 टेलीफोन केबल जो है ना टेलीफोन लाइन उसका बहुत दूर पे डिवाइस दे कवर डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर्स तो उसमें कहाँ सस्टेन होगी आपकी कौन सी सिग्नल डिजिटल सिग्नल के साथ सस्टेन एट मोस्ट 100 मीटर्स यानी कि जब आप डिजिटल ये इथरनेट केबल जो होती है वो 100 मीटर तक चली उसके बाद उनको लगाना पड़ता है रिपीटर स्विच और समथिंग सो दैट इट रिपीट इट अगेन ठीक है जो आपके पास होती है टेलीफोन लाइन दे रन किलोमीटर्स उसमें कहाँ चलेगा डिजिटल सिग्नल उस पे सिंपल एनालॉग सिग्नल चलती है वहां पे आपके पास कीइंग इस्तेमाल यू हैव टू सेंड डिजिटल डेटा बट कीइंग इज यूज्ड तो मोस्टली कौन सी कीइंग इस्तेमाल होती है QA क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन 64 QA में 32 QA में इस्तेमाल होता है आपके किस में ADSL में इस पे ब्रॉडबैंड सुना इन फाइबर ब्रॉडबैंड अभी भी होगा BSNL का ब्रॉडबैंड so that there it is used 16 to 64 QA quadrature amplitude modulation is used so they are analog signals that run very easily so digital signals can't run such distances because digital signals are composite signals the person why they behave समझे so you need repeater even after 300 meters उसमें तो एक्सचेंज से स्टार्ट हो गया फिर मेन एक्सचेंज से लोकल एक्सचेंज तक भी कम से कम 5 किलोमीटर होते हैं ठीक है तब तक वो अच्छे से चलती है सिग्नल आपकी सो दिस इज योर कॉपर ठीक है कॉपर के बाद आ गया कोएक्सियल कोएक्सियल में ऑलरेडी पढ़ा है इसलिए जल्दी में बोलता हूं कोएक्सियल टॉक के बाद थिकनेस है लेकिन कोएक्सियल इज नॉट डिस्टेंट ठीक है सो कोएक्सियल में ऐसा क्या किया हुआ है जिसकी वजह से कोएक्सियल की बैंडविड्थ भी अच्छी खासी है and that is used और कोएक्सियल एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए अच्छा है कि डिजिटल ट्रांसमिशन और कोएक्सियल जो आपके पास है उसका बनावट क्या है ये 3 सवाल आप कल समझ जाएंगे फिर क्या क्या कंस्ट्रक्शन मैंने बोला अब वीडियो में देखना वीडियो होगा